A very good morning to all students. Once again, we are coming to some of the important case studies related to the class 12 business studies, and all the case studies are already asked in the board examination conducted by the CBSE for class 12th business studies. You know very well, case studies is a very important part of your class 12 business studies because in this type of the question, generally examiner asked and given the certain situation and used a specific word. With the help of these situations as well as the specified words, you can easily identify and explain the related concept asked in the questions. So, you know very well, before the solving the case studies asked in the sample paper, in the model paper, as well as in the board examination paper, you have a sufficient and detailed information of your all the syllabus. So I request to all the students, before solving the case studies of the particular topic or the particular chapter or the particular paper, you must ensure that all the chapters, all the contents of the chapter were revised by you. So let's be discussed in today's video few of the important case studies which are asked in the CBSE board examination as well as which are included in the sample paper issued by the CBSE in the last few years. So the first question, as you can see that on your screen, the question number 1 is: the production manager of a company assigned a target of production of 1000 toys to 10 workers. They together assigned production of 100 toys among themselves. It implies that each worker was supposed to produce 100 toys. One of the workers met with an accident and was not able to contribute towards the production target. Other workers did not agree on the dividing the injured workers' work among themselves. They all concentrated on their individual target and ignored the overall organizational interest. Hence, the target production of 1000 toys could not be achieved. So, in this question, you can easily see that कि एक प्रोडक्शन मैनेजर कंपनी ने असाइन किया 1000 टॉयज 10 वर्करों के बीच में और हर वर्कर को 100 टॉयज प्रोड्यूस करने को दिया गया। उसमें से कोई एक वर्कर जो था वो एक्सीडेंट में क्या हो गया, इंजर्ड हो गया, और जिसके कारण जो प्रोडक्शन टारगेट था वो लोगों को बढ़ाना होगा। यू नो वेरी वेल, जब कोई एक वर्कर अपना टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाया या फिर उसकी इंजरी हो गई तो उसका जो टारगेट है वो बाकी लोगों को परफॉर्म करना पड़ेगा, बाकी लोगों को उसके टारगेट कंप्लीट करने पड़ेंगे। सो एक वर्कर को 100 टॉयज बनाना था, बट एक वर्कर की तबीयत खराब हो गई या वो एक्सीडेंट हो गया तो बाकी वर्कर को उसके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना चाहिए था मिलकर इक्वली, बट उन्होंने सिर्फ अपने इंडिविजुअल टारगेट पे फोकस किया, ग्रुप ऑफ द टारगेट को फोकस नहीं किया। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड हियर। If we are talking about the features and characteristics of the management, so you know very well, management is a goal-oriented process. It is an pervasive, it is a very dynamic, it is a very complex function, it is a group activity. So you can see that यहाँ पर मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर दैट इज एन ग्रुप एक्टिविटी वॉयलेट हुई है। अकॉर्डिंग टू द management is a group activity, you know very well. In the management, you know very well, there should be a coordination between all the employees because it is an
it is called organization. If we are talking about the management, so management is related to the organization. And what is the meaning of organization? When two or more than two people are working together for achieving a common goal. यानी जब दो या दो से अधिक लोग किसी एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. और ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा लोग काम करते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? मैनेजमेंट की. यहाँ पे दूसरा है नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल डेट इज वायलेटेड हियर. यहाँ पे कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट हुआ है? तो यू नो वेरी वेल. यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट इज इन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जो ये कहता है कि हर एम्प्लॉयज़ को इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा जनरल इंटरेस्ट पे बिलीव रखना चाहिए. यानी यहाँ वर्कर्स को ये नहीं ध्यान रखना चाहिए कि हमारा टारगेट है 100 टॉयस बनाना. यहाँ ये ध्यान रखना है सारे वर्कर को कि हम इतना काम करें, हमें इतना काम करना है ताकि 1000 टॉयस पूरा हो. क्योंकि यहाँ लोगों ने सिर्फ अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखा, ग्रुप इंटरेस्ट नहीं देखा. दैट्स वाई यहाँ पे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड हियर. So let's move to the next question, question number 2. Question number 2 is, one of the corporate giants is facing lots of criticism due to the different behavior and attitude towards worker on the basis of their caste, sex and religion. क्लियर लिखा है कि कॉर्पोरेट जेंट्स फेस कर रहा है लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म. एक कॉर्पोरेट कंपनी है जो कि बहुत तरह के क्रिटिसिज्म फेस करी है. क्यों? ड्यू टू द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्कर ऑन द बेस ऑफ देयर कास्ट, सेक्स एंड रिलीजन. क्योंकि वो क्या करती है, बिहेवियर डिफरेंट बिहेवियर करती है, डिफरेंट एटीट्यूड रखती है कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे. तो यहाँ आपको बताना है विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट फॉलोड हियर, विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज मेंशनाइज्ड हियर, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट फॉलोड हियर. सो सिंपल सी यह बात है कि विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट फॉलोड हियर. यू नो वेरी वेल दे आर बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से कोई मतलब नहीं है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव से कोई मतलब नहीं है. यहाँ सोसाइटी जो सोशल कास्ट सिस्टम है उस पर हमें बिलीव रखना चाहिए, उसको हमें फॉलो करना चाहिए. यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, उसी के बेसिस पे कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन के बेसिस में लोगों के साथ डिफरेंट बिहेवियर किया गया, डिफरेंट एटीट्यूड रखा गया. एंड दिस इज़ वेरी बैड. दैट्स वाई इन दिस क्वेश्चन द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज not followed here. The second will be the second question of this paragraph, which dimension of business environment is mentioned here. यहाँ पे कौन सा business environment का dimension mention हुआ है? So it is very clear. इसमें political issues की बात नहीं हो रही, इसमें legal environment की बात नहीं हो रही, यहाँ technological environment की बात नहीं हो रही, यहाँ economic environment की नहीं बात हो रही, यहाँ बात हो रही है social environment की. Because social environment refers to the factors, refers to the element related to the social caste, creed, religion. जहाँ पे हम सोशल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो एक बिजनेस जो है वो कई तरह के सोशल इश्यूज के आसपास एग्जिस्ट करता है. उस बिजनेस के आसपास सोशल बिलीफ्स होते हैं, सोशल कास्ट होती हैं, कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होती हैं, और उन्हें वो सारे कस्टम्स, बिलीफ सबको फॉलो करना पड़ता है. नंबर 3, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट फॉलोड हियर. यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया गया है? आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट फॉलोड हियर. तो अकॉर्डिंग यू कैन सी दैट यहाँ पे द वेरी फेमस प्रिंसिपल दैट इज एन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज नॉट फॉलोड. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यू नो वेरी वेल, there should be a equality between all the employees, all the person works under the single organization. On the basis of the caste, gender and religion, we cannot differentiate among them. If we are doing such kind of the things, so it shows our illness, it shows our bad personality to
टूवर्ड्स दी सोसाइटी। इट मीन्स हमारा एजुकेशन अभी इतना बेटर नहीं हुआ है कि हम इस तरह की इनइक्वालिटी की बात करें। सो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज वायलेटेड हेयर, social environment is mentioned here, and the social objective of the management is not followed here. Okay, that is a name and explain the principle of management. और ये सारे क्वेश्चन यू कैन सी दैट CBSE के ऑल इंडिया 2010, CBSE दिल्ली 2010, CBSE ऑल इंडिया कंपार्टमेंट 2004, CBSE फॉरेन 2004 में आ चुके हैं। सो क्वेश्चन में कह रहा है नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेम लाइन को आइडेंटिफाई करके यू विल गिव द नेम ऑफ सच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंडिकेटेड इन द लाइन एंड उसको एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट इज इन विच वर्कर्स शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इंप्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है इन विच वर्कर शुड बी इनकरेज्ड टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इंप्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए वर्कर्स को, मैनेजर्स तो प्लान लाते ही लाते हैं, वर्कर्स को भी इनकरेज करना चाहिए कि वो कुछ प्लान डेवलप करें। यानी वो सिर्फ प्रॉब्लम ना बताएं, दे विल गिव टू द सॉल्यूशन टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। सो इसमें क्या है, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव तो यही कहता है ना, अभी हम लोगों ने देखा कि वर्कर्स को के सजेशन को वेलकम ही नहीं करना है, उनके सजेशन को हमें उनके सजेशन को हमें क्या करना है, इनकरेज करना है। सेकेंड, विच रिक्वायर्स जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज बाय द मैनेजमेंट। कह रहा है कौन सा ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो कहता है कि बिजनेस में जुडिशियस एप्लीकेशन होना चाहिए पेनाल्टीज़ का। यानी अगर हम फाइन्स लगा रहे हैं वर्कर्स पे या एम्प्लॉयज़ पे तो उसका एक जुडिशियस एप्लीकेशन होना चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता है कि हर चीज़ का रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, उस रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, और कोई भी जैसे पेनाल्टीज ही लग रही है तो उसका एक जुडिशियस मैनेजमेंट होना चाहिए। विच पॉइंट्स आउट द डेंजर एंड कॉस्ट ऑफ अननेसेसरी लेबर टर्नओवर। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है विच पॉइंट्स आउट द डेंजर एंड कॉस्ट ऑफ अननेसेसरी टर्नओवर। यानी ऐसा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो बिजनेस के लिए डेंजर हो सकता है और अननेसेसरी लेबर टर्नओवर को मोटिवेट कर सकता है। सिंपल से सोचिए, लेबर टर्नओवर का रिलेशन किससे, लेबर टर्नओवर इज व्हाट, हर साल बार बार एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाएंगे। एम्प्लॉयज़ जब छोड़ के जाएंगे तो उसका मतलब क्यों वो छोड़ के जा रहे हैं, उनका रीज़न क्या है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। यू नो वेरी वेल, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी अब्राहम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, सो बेसिकली इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नेट फर्स्ट टू नीड्स होती हैं। यानी अगर कोई एम्प्लॉयज़ में ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो, चाहे वो बेटरमेंट हो, उसमें ग्रो हो, उसमें कई सारे पॉजिटिव पॉइंट हो, लेकिन अगर वो प्रॉपर रेम्यूनरेशन नहीं देता है, एडिक्वेट रेम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं करता अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वहाँ अननेसेसरी लेबर टर्नओवर देखने को मिलता है। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे कितने भी टफ रूल्स बनाए, चाहे कितने भी रिजिड हो, लेकिन अगर वो प्रॉपर एंड एडुकेट रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करता है तो वहाँ लेबर टर्नओवर कम होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इज विच एम्स एट द सिक्योरिंग द लॉयल्टी एंड डिवोशन ऑफ द एम्प्लॉयज बाय गिविंग देम काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट। लिख रहा है कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो इस बात पे एम करता है कि एम्प्लॉयज़ का जो लॉयल्टी एंड डिवोशन है बाई गिविंग देम काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट। जस्ट ट्रीटमेंट का मतलब है इक्वालिटी की बात हो रही है, यानी कि उनके साथ काइंड, फेयर और जस्ट ट्रीटमेंट हो। इट मीन्स किसी भी एम्प्लॉयज़ के साथ उनके कास्ट, उनके क्रीड, उनके कलर, उनके रिलीजन, उनके कह सकते हो परसेप्शन, एज वेल एज उनके बिलीफ्स के अकॉर्डिंग, उनके जेंडर के अकॉर्डिंग भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। नंबर 5, विच सेज वी शुड नॉट हैव मल्टीपल बॉसेस एज इट लीड टू द डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट, कौन कहता है वी शुड नॉट हैव अ मल्टीपल बॉसेस, यानी कौन सा प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे मल्टीपल बॉसेस नहीं होने चाहिए, इट विल लीड टू डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना है। तो इसमें दो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखने को मिल रहे हैं। वी शुड नॉट हैव अ मल्टीपल बॉसेस, इट मीन्स यूनिटी ऑफ कमांड। You know very well, unity of command says that there should be one superior over a one subordinate.
मीन्स एक सबऑर्डिनेट का एक ही सुपीरियर होना चाहिए, उसके एक से ज़्यादा सुपीरियर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब उसको कमांड मिलेगा तो वो कंफर्म नहीं हो जाएगा। जैसे अगर आप लैपटॉप में प्रेस करेंगे, एक दो की एक टाइम पे एक ही साथ प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर कभी कमांड नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि दे विल गेट कन्फ्यूज्ड। तो उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसके एक बॉस होना चाहिए और उस बॉस अपनी जो डायरेक्शन है, अपनी जो कमांड है वो क्लियर रखना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और बोला, इट विल लीड टू डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटना चाहिए। तो ये डिवीज़न ऑफ वर्क की बात कर रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ा है तो उसको अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है जिसमें आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, name a company believes in the natural growth of an enterprise as per the need and circumstances. It has no policy to regulate the working of its staff. Therefore, the staff has become unproductive and unpunctual advice. Unpunctual advice. इसका मतलब इसमें बोल रहा है एक कंपनी जो बिलीव्स करती है नेचुरल ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज एज पर द नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस। कंपनी बिलीव करती है कि एक बिजनेस जो है वो नेचुरली ग्रो करे जैसी नीड हो और सर्कमस्टेंसेस हो। इट हैज़ नो पॉलिटी टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ इट्स स्टाफ, और जो स्टाफ है उनकी वर्किंग को रेगुलेट करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। इसीलिए द स्टाफ हैज़ बिकम अनप्रोडक्टिव। स्टाफ क्या हो गया, अनप्रोडक्टिव हो गया, अनपंचुअल, यानी कि कंपनी में मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैनेजमेंट को लेकर प्रिंसिपल की बात नहीं, क्योंकि कंपनी का ये मानना है कि जैसी नीड होगी, जैसे सर्कमस्टेंस वैसे हम ग्रो करेंगे, और कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे, स्टाफ को मैनेज करने की कोई बात नहीं हो रही है, और स्टाफ क्या हो रहा है, अनप्रोडक्टिव और अनपंक्चुअल हो गया है। तो सिंपल सी बात है कि कंपनी को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए। पहली बात, अगर कंपनी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करेगी, मैनेजमेंट एक प्रॉपर मैनेज बनाए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, एक प्रॉपर वे बनाएगी, तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि यू नो वेरी वेल देयर आर वेरियस इंपॉर्टेंस पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल मैनेजमेंट। प्रिंसिपल मैनेजमेंट के अप्लाई करने से कोई भी काम ईजी हो जाता है, साइंटिफिक अप्रोच हो जाता है, कम टाइम लगता है, कम होता है, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रोडक्टिव हो जाते हैं, पंचुअल हो जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। नाउ मोस्ट of the foreign food chains operating in India change their menu as per the requirement of Indian taste, food and preference. The number one is, which characteristics of management is highlighted in the above statement? Name and explain the dimension of business environment followed by the foreign food chains. यहाँ सिंपल सा दिया है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक इन्वायरमेंट, और बिकॉज यू कैन सी दैट इन दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि मोस्ट ऑफ द फॉरेन फूड जो चेन जो इंडिया में काम कर रहे हैं उन्होंने अपना मेनू चेंज कर दिया, क्योंकि जो इंडियंस, जो कि हमारे यहाँ पीपल्स हैं, जो इंडियन टेट्स हैं, फूड हैबिट्स हैं, उनमें चेंजेस आ गया। सो यू नो वेरी वेल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द management, that is a management creates a dynamic organization. Management changes day by day. Okay, the number second is, name and explain the dimension of business environment followed by foreign food chains. आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन इंक्लूड किया गया है। नेम एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट फॉलोड बाय द फॉरेन फूड चेन। सो द राइट आंसर इज सोशल एनवायरनमेंट। ओके, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is very important. Mr. Rajat is a managing director in a garment manufacturing company. He believes that each group of activities having the same objective must have one head, one plan. He also believes that employees should be selected and appointed after due and rigorous procedure. And once selected, they should be kept at their post position for a minimum fixed tenure. Mr. Rajat aims at a reconciled personal goal of the employees with the organizational objective for the harmony in the organization. He is of the view of the management cannot be seen, but his presence can be felt in the way an organization functions. इसमें सिंपल से बोला है, नेम द टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड बाय मिस्टर रजत. सो इट्स वेरी क्लियर अबाउट इट कि उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आप लोग को दिख रही होगी, having the same objective must have one head, one plan.
He believes that each group of activity having the same objective must have one head, one plan. It means unity of direction. उसने ये भी कहा, he also believed that employees should be selected and appointed after a due and rigid procedure, and once selected they should kept at their post position for a minimum tenure. It means stability of personnel. यानी दो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया, दो प्रिंसिपल बताया. एक सबसे इजी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, नंबर सेकेंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब वन हेड वन प्लान, एंड नंबर सेकेंड should be kept at their post and position for a minimum fixed tenure. It means stability of personnel. And next question यहाँ पे पूछा है, name the objective, explain the objective of management which Mr. Rajat is trying to achieve. So it is an very important, that is an personal objective. यहाँ पर सिंपल सी बात की गई है, इसमें लिखा हुआ है ना कि रजत एम्स एट रिकॉन्साइल पर्सनल गोल ऑफ द एम्प्लॉयज विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर अ हार्मोनी इन द ऑर्गेनाइजेशन. मिस्टर रजत जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पे फोकस नहीं करता, वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की हेल्प से लोगों के पर्सनल गोल को पूरा करने की कोशिश कर रहा है. तो यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात हुई है. नेक्स्ट, नेम एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट दैट हैव बीन हाईलाइटेड इन द अबव पैरा. वो लास्ट लाइन में लिखा है, he is of the view that management can be seen but its presence can be felt in the way an organization function. तो मैनेजमेंट, अगर हम देखें मैनेजमेंट को व्यू की बात करें तो उसकी प्रेजेंस देखी नहीं जा सकती. जैसे हम देख नहीं सकते मैनेजमेंट को, बट इसकी प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं ड्यू टू द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सो इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल. ओके, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. So let's we move to the question number 5. The question number 5 is, Ajay has been recently appointed as a production manager of Surya Limited. He decided to stop the production of plastic bags and instead commence the production of jute bags. He assigned a target of around 800 jute bags a day. And the next information, which could not be achieved by the worker could manufacture only 500 bags a day. Mr. Ajay wanted to analyze the reason behind such a deviations. On evaluation, he found out that workers were not properly motivated towards their work. Hence, he decided to give the following incentive to workers. So you can see that Ajay recently appointed हुआ प्रोडक्शन मैनेजर सूर्या लिमिटेड का. उसने डिसाइड किया कि वो प्लास्टिक बैग का प्रोडक्शन बंद करेगा, उसकी जगह वो जूट बैग प्रोड्यूस करेगा. उसने असाइन किया अराउंड 800 जूट बैग पर डे बनाने का, बट जो उसके वर्कर्स जो क्या थे, पूरा 800 जूट बैग्स बनाने के लिए कैपेबल नहीं हुए, अचीव नहीं कर पाए टारगेट. एंड द वर्कर कुड मैन्युफैक्चर ओनली 500 बैग्स. और उन्होंने देखा कि सिर्फ 500 बैग ही एक दिन में बन पा रहे हैं. मिस्टर अजय वांटेड टू एनालाइज द रीजन ऑफ डेविएशन, और उन्होंने रीज़न को एनालाइज करने की बात की. और ऑन इवेल्युएशन उन्होंने प्रॉपरली देखा कि इवेल्युएशन करके उन्होंने देखा कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दे आर नॉट प्रॉपरली मोटिवेटेड, वो मोटिवेटेड नहीं है अपने गोल की तरफ. सो ही डिसाइडेड टू गिव द फॉलोइंग इंसेंटिव टू वर्कर. और इसलिए उन्होंने उसको ये सारे इंसेंटिव देने की क्या किया, पहल किया. एंड द इंसेंटिव्स आर number 1, installing the award or the certificate for the best performance. उन्होंने best, so the first is installing the award or the certificate for the best performance. Number 2, rewarding the employees for their valuable suggestion. Number 3, congratulating the employee for their good performance. The question is, question number 1, identify and explain the function of management mentioned in the above paragraph. So you can see that in the above paragraph we are talking about the very important function of the management, that is in controlling, because you can see that इसमें हम लोगों ने सबसे पहले टारगेट असाइन किया, that is in 800 jute bags of a day. नंबर सेकेंड, यहाँ पे हमने मेजरमेंट किया ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस, that is in 500 bags a day. नंबर थर्ड, हमने डेविएशन एनालाइज किया, दैट इज इन 300 bags a day. एंड देयर आफ्टर उसके रीजंस को एनालाइज किया, विच इज़ कॉल्ड द एनालिसिस डेविएशन. एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने
उस डेविएशन को एनालाइज करने के बाद हमने करेक्टिव एक्शन ये लिए कि जो पीपल्स थे, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर थे, दे आर नॉट प्रॉपरली मोटिवेटेड. सो उनको मोटिवेट करने के लिए वी प्रोवाइड अ सफिशिएंट एंड प्रॉपर इंसेंटिव टू द वर्कर्स. नंबर सेकेंड, नेम एंड टाइप ऑफ इंसेंटिव यूज बाय मिस्टर अजय टू मोटिवेट. इसमें अजय ने कौन कौन सा इंसेंटिव यूज़ किया है. सो यू कैन सी दैट उन्होंने सर्टिफिकेट दिया बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ के वैल्यूएबल सजेशन के लिए उनको रिवॉर्ड दिया, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया. तो बेसिकली यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात हो रही है, मनी नहीं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात हो रही है. नंबर सेकेंड, स्टेट एनी 2 फाइनेंशियल इंसेंटिव डेट कैन बी ऑफर टू एम्प्लॉय. इस सिचुएशन में कौन से 2 फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो एम्प्लॉयज़ को ऑफर किए जा सकते हैं. तो वो है बोनस, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स एंड पे. So the right answer of this question is the process which are followed in all the paragraph, that is in directing and controlling. Number second, the incentive which are provided by the employer to his employee, that is a non-financial incentive. And number third, apart from this, employer also provided 2 financial incentive to their employees for motivating them, that is in pay and allowances and perquisites. The next will be a question number 6. Peter is a production in charge in a factory. He expects his subordinate to obey his order and act according to his command. He uses both punishment as well as the award depending upon the result. He insists on one-way communication whereby only he gives order and instruction to the subordinates. As the worker know that there is no motivation or incentive for communication, they hesitate communicating with Peter. Peter does not encourage workers to develop their plan for improvements. He does not welcome valuable suggestions from the employees. He keeps on bossing around people within the factory. So you can see that क्वेश्चन में लिखा है कि पीटर एक प्रोडक्शन इंचार्ज है फैक्ट्री में. उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि उनके सबॉर्डिनेट उनके ऑर्डर को फॉलो करें और उनके कमांड को उनके अकॉर्डिंगली फॉलो करें. उन्होंने पनिशमेंट के साथ साथ रिवॉर्ड की भी फैसिलिटी रखी है अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट. अगर कोई पर्सन अच्छा करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा और अगर ख़राब करता है तो उसको पनिश किया जाएगा. ही इंसिस्ट ऑन द वन वे कम्युनिकेशन. उन्होंने वन वे कम्युनिकेशन पे फोकस किया और ओनली ही गिव्स ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन टू सबॉर्डिनेट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो लोग ऑर्डर देंगे और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करवाएंगे. एज द वर्कर नो डैट देयर इज़ नो मोटिवेशन और इंसेंटिव फॉर कम्युनिकेशन. और उन्होंने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए उनको किस तरह का कोई मोटिवेशन या इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं किया, जिसके कारण ऑल द वर्कर्स क्या करते थे, हेजिटेट करते थे, घबराते थे पीटर्स के साथ कम्युनिकेट करने में. पीटर डज नॉट करेक्ट वर्कर टू डेवलप देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट. और पीटर वर्कर्स को उनके प्लान को इम्प्रूव करने के लिए इनकरेज भी नहीं करता था. ही डज नॉट वेलकम द वैल्यूएबल सजेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज़. यहाँ तक कि पीटर जो था वो एम्प्लॉयज़ के वैल्यूएबल सजेशन के लिए उनको वेलकम भी नहीं करता था. ही कीप्स ऑन बॉसिंग अराउंड पीपल विद इन द फैक्ट्री. वो पूरे फैक्ट्री में एक बॉस बन के बस घूमता रहता. आपको ये बताना है, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. नेम एंड एक्सप्लेन द लीडरशिप स्टाइल फॉलोड बाय द पीटर. पीटर कौन सी लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर रहा है, तो वो है ऑटोक्रेटिक. अंडर द ऑटोक्रेटिक यू कैन सी दैट वन वे कम्युनिकेशन होता है. सुपीरियर सिर्फ ऑर्डर देता है अपने सबॉर्डिनेट को और सबॉर्डिनेट उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं, पूरा करते हैं. वन वे कम्युनिकेशन रहता है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर ऑर्डर देता है, सबॉर्डिनेट काम करके रिजल्ट देता है. ऑटोक्रेटिक. नंबर सेकेंड, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ओवरलुक बाय पीटर. पीटर ने इसमें कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया, तो इट इज़ वेरी सिंपल, दैट इज एन प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. According to the principle of initiative, you know very well there should be a proper coordination between the employer and employee, and employee should motivate to their employer. Employees को अपने employer को properly motivate करना चाहिए for their suggestion. If any employees giving a good idea for the betterment of the company to the employer, so in this situation employer should motivate, welcomes the suggestion and appreciate them for their suggestion. Because suggestion सही हो चाहे गलत हो, but suggestion अगर आपको कोई दे रहा है so it is very important. Especially employee जनरली अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सजेशन इसलिए नहीं देता है कि they are fear to lose their job.
कि अगर वो सजेशन देगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके एम्प्लॉयज़ को अच्छा ना लगे, ऐसा ना हो कि उनको ये लगे कि वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ जॉब, हम अपना जॉब नहीं करना चाहते इसलिए हम सजेशन दे रहे हैं। बट अगर कोई आपको बेसिकली अपने एम्प्लॉयज़ को रेडी रखना चाहिए कि दे आर गिविंग सजेशन टू द organization for the betterment of their work. Okay, so next will be a 7. Tokyo Limited is a two-wheeler manufacturing company which is very popular for its fuel efficient scooters and motorcycles. Saurabh, the managing director of the company, wants to uh, increase the production capacity of the firm due to the increased demand in the market. For this, he has to obtain, utilize and maintain a satisfactory and satisfied workforce. For this, he identified the requirement of workforce, followed by the recruitment, selection, placement, promotion, appraisal and development of personnel. In order to attain occupational specialization, Saurabh has grouped the jobs of similar nature and has set up separate department which report to a coordinating head. Very simple. इसमें क्वेश्चन पूछा है which of name the function of the management is the above para. So you can see that in this paragraph we are talking about the staffing and organizing. Which type of organization structure is most suitable for Tokyo Limited? That is an, अगर हम पूरे डिपार्टमेंट बात करें, दिस इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर बिकॉज यहाँ पे परचेज, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट की बात हो रही है। और 3 एडवांटेजेस बताने हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, तो यू कैन सी दैट इन दिस पैराग्राफ. It leads to occupational specialization, it promotes control and cooperation, it increase managerial and operational efficiency. So इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी और प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे, बट आज के लिए इतना ही. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.